You want me to wait uh, another one day? Yeah, one thing I want to share. Yeah. Yes. Hello. Anybody wants to say anything? Yes, yes. I want to say one thing. I want to share one thing. Yeah. So one my suggestion is, if possible, means, if possible, we can start the practical section from tomorrow, because Okay. most of the students are not at install, right? Yes. So my suggestion is, practical section Mm, is, it's better to start from tomorrow, I think, is my suggestion. okay. Yeah. That's fine. That's fine. I know I can start it tomorrow, but everybody has to assure, who have not installed SAP, like if they can assure, like I'll get it done by tomorrow. So then we can cover some other topic, the theoretical part today, so that we can start our actual configuration tomorrow. Yes, yes, it's better. Can I get S from anybody else apart from you? Uh, at least any comments in the chat box? Where S Shafi Malik S. So because it's no use, as I told you. So without having SAP, if I start saying things, in if I start configuring here, you can able to see, and it will be easier for you, when you see it. But when you woke up tomorrow and when you see SAP to to configure, or after 1 or 2 days, it will be difficult, if you can't practice it on the time. No, at least by today evening, or today night, or tomorrow morning, at least by tomorrow's next class. Okay. So if this is not the case, then it will be difficult for you to remember, because we have gone through that phase. We have gone through that phase, when we are when we were learning SAP. It's almost like 4 or 5 years back. Even in Amirpet, we reached, we have visited, almost all the institutes in Hyderabad. So where SAP, SAP training was, providing, but we couldn't find any proper trainer who can give us, real time training. But because, most of them say, like, they'll be having 10 years of experience, but what is in reality is, those people won't be having any real-time experience. They'll be working in different industries as a SAP user only, but they're not the consultants. Consultants won't be having much time to visit institutes to train the students. Remember this. Maybe most of them, do it in online, like what I'm doing here now. So, but even yesterday, I visited so many institutes in Amirpet. I wanted to see, how the things are going on. What kind of trainings they are providing, and how much they are charging. What kind of things are going on? Cyber security, data science, DevOps for SAP. I have visited so many institutes. So there were no proper faculties. Some of them are having the proper faculty. They are charging more. Some of them are maintaining it online. So yeah. So nobody, you won't find, the real time experience guy who can provide you the real time training. So they have to utilize this opportunity. I want everyone, because my only intention is, I can continue my classes without saying you to do all these things. I can continue. I can finish this in 10-15 days. But what my ultimate goal is, at the end of my class, everybody should have, at least 50% of you should have an offer with you, because what my plan is, after 70-80% of the syllabus, I want every one of you to prepare some resumes, to update your resumes, according to the SAP things. So I'm gonna share you some example CVs of SAP. According to that, you can align your CVs, and you can upload it on Naukri. You will definitely be getting, calls. When if you're uploading today night, means tomorrow definitely you will be getting a call, from any consultancy or any company. You can tell them to schedule a call. Okay. You don't need to worry. You can tell them to schedule a call. You can attend that interview, so that you will be knowing, see how the interviews are going, and what things they are expecting from us, and where actually you're lacking. That is what you have to do. So you have to attend the interviews, after when I cover 70% of the syllabus, and when you able to cover that material, it's a very good material which I have shared you, from the tutorial spine. And I want everybody to take a printout of this, because we know the if you're having this document in hand, that will be more flexible than reading it on
mobile or your tab or your laptop, because every time you're not going to open your laptop to read this book. But if you have a material, so you can whatever the topics I'm discussing, if I'm saying, this point is very important, you can highlight it and you can write it in pencil. So if you're not understanding the terminology, you can write it in Telugu, Hindi, whatever the language you're flexible in. So some, I can see some of you are from Karnataka, some of you are from Maharashtra, in Marathi, in Kannada, in any language you can translate it. You can translate that word. So it's better to have a printout of your printout of this material. Okay. So what I'll do is, like, I'll take that suggestion, like this practical session I'll be doing tomorrow. So better what I'll do is, like, I'll be going forward, So but why actually we needed this enterprise structure to be configured in SAP? Where actually you can see it. What actually the process? I told you, right? There will be a purchase order document. There will be a goods receipt. There will be invoice. The major documents in SAP, wherever you go, the discussion will happen based on three documents. Remember, so one is always a purchase order, and the second one is your goods receipt. If you see this diagram here, so first step is to create a PO. When you find the requirement, so I can directly create a PO also without purchase requisition. Remember this. I told you the procurement cycle starts from gathering the requirement. So if I gathered requirement, okay, I can directly create a PO also, without taking a quotation. As I told you, if I know the supplier, I don't want to get a quotation. If I want to get a quotation, I should create a purchase requisition first. That purchase requisition, will be sent to different, whatever the requirements you have, that will be sent to the supplier by telling them, like, please submit your quotations on these materials. They will submit these quotations, and among them you'll choose a quotation, and based on that quotation you're going to create a purchase order. This is what's going to happen in a basic procurement cycle. But most of the cases, what will happen is, the companies won't be having that much of staff in their company. So what they'll directly do is, if they find the requirement, they'll directly create the purchase order. If they know the supplier, if they know that this supplier is very suitable for my requirement, so what they're going to do is, they'll directly create a purchase order. So this is the major document in SAP MM. If you're working as a SAP MM consultant, so wherever you go, whatever the configuration you go, you'll hear a word like purchase order, goods receipt, invoice document. These are the major documents which you will hear in SAP, which you will configure in SAP, which you will understand things related to SAP. So purchase order, goods receipt, and invoice. So this is the first document, the first major document. This is the purchase order. So why I'm mentioning only purchase order here? Why I'm not mentioning purchase requisition means, understand this. Purchase order, as I told you, purchase order is the initial document, which is going outside of your company. It's an external document, we will say. Purchase requisition and RFQs, all these are your internal documents. What quotations you got, I can't able to see your quotations. Your employees only can able to see that quotation. Out of your organization, nobody can able to see. But the purchase order can see anyone. The purchase order you have sent to a supplier, the supplier can see. The supplier, all the employees of the supplier can see the purchase orders. Everybody can see. Okay. So the purchase order is the external document, which you will going to create in the first step, to procure the goods. The second is your goods receipt, and the third is your invoice document, which I will call it as a mirror. Remember this T codes. From now onwards, I want you to by heart the T codes. Every day I'll give you 4 to 5 T codes that you need to by heart. Remember, every time if you wanted to create a PO, it will be ME21N. You will be using this transaction mostly, in the 70% of your projects every day, mostly you have to go through this transaction, ME21N, ME21N. And the end users will be using, if you are working in a purchase organization department, where SAP was installed, so you have to use this transaction to create a purchase order, ME21N. Remember this. The next is your goods receipt, MIGO. Sorry for the interruption. Yeah. Could you please share the T codes, like creating, editing, and where we can see the purchase order, like that, so that we can make a table and it will be at one place. No, at this stage, remember one thing, we are not entering into the purchase order configuration. When we are discussing a topic of purchase order configuration, there are 8 to 10 T codes of the purchase order. To create a purchase order, you have ME21N. To edit a purchase order, you have ME22. To display a purchase order, you have ME23. If you want a report of list of purchase orders, you have MM60, you have ME2L.
ME, 2M you have. So you have the different T codes, which we can discuss when we are discussing about purchase order topic. But at this Sure. stage, at each and Sure. every stage, what T code is required, that I will tell you. That ticket only you have to remember. So you don't need to go beyond this topic. So simply at this stage, what I want you to remember is you only to remember ME21M. And where Sure. exactly you can create this, I'll show you in the later part. Okay. So the first T code which you have to remember is that to create a purchase order, it is ME21N simply. Okay. And the second is to post a goods receipt, you have to remember MIGO, MIGO. So the third one is Miro, MIRO. Miro is always used to post an invoice. Remember this. So what I'm going to do now is I'm going to take you an SAP screen where I'll show you some things. This you can remember and this you can browse tomorrow when you get installed SAP. Okay. I'm not showing you any configuration here, but I'm going to show you some transactions or some screens which are important for you, which you can browse it. See, I'm going to log on now. I have installed ECC EHP6. EHP7 is the latest one, enhancement package. ECC1, ECC2. So ECC6 is the latest one. ECC6 enhancement package 7 is the latest one. Okay. But ECC6 and enhancement package 6 is enough for us, for configurations. Okay. So now I'm logging to this now. SAP user was my user ID. So, and the password is India123. Most of you will get this user ID and password. Okay. So there is no secrets here. I can tell you my password. It's India123. Okay, I can click on this. Okay, button. Now we have entered into SAP Easy Access menu. It is. So what you have to do is when you get this SAP installed, you have to click each and every tab. What is there in each and every tab? If you have to click menu, what are there in menu? You have SAP menu here, business workplace, create role, display role, refresh. What is this? Edit, execute in new window, create shortcut in the desktop, favorites. What are these? Add a favorite. If you want to add a favorite, you can add it here. Because like I said you, in order to create a PO, I told you ME21N, right? This is the command bar where you can type your T codes. I'm entering now. This is loading. ME21N is a T code for you to create a purchase order. Purchase order is a kind of document, is a document which will go to the supplier, which says like, yes, I need this material. So that says supplier to deliver this material in order, in an agreed prices, in an agreed delivery date. Okay. It is still loading because, this is the first time which we are executing this transaction in the server. So first time, it will load. It will take some time to compile all the data because this SAP, this practice server will always be having some data behind it. Okay. It's not like this server is completely empty, but this server will be having some test data, some background, some sample data it will be having. So that is why, it is looking after all these data tables, which is in this behind. So remember one thing, behind to this SAP, there always be we need a ABAPer to code everything. Most of I've seen my messages in WhatsApp. My WhatsApp is flooded with so many of your messages. I couldn't able to respond to you all, but whenever I find time, I'm responding to every one of you. So the most of the common question which I'm going to hear is like, sir, do we have any coding in SAP? Yes, we do have any coding in SAP, but as a functional consultant, you are not going to do any coding here. Only the technical consultants who will be called as ABAPers. Okay, SAP ABAP. If you heard about this term SAP ABAP, those people need to configure, need to do coding. You're kind of people who know the basic C languages, Java, .NET, these kind of languages. For them it will be easier to understand SAP ABAP, and you can work as a ABAPer. ABAPer can expect more package than a functional consultant. He'll be having more technical knowledge than you. He'll be having a functional knowledge. You'll be having a functional knowledge. Means the front end knowledge you'll be having. The back end knowledge will be ABAPer is a person who will be having the back end knowledge. So this is still loading. Let it get load. So we'll go back to the document. See, as I told you, this is your purchase order. The first document which you need to create is a purchase document. Second is a goods receipt. Third is a invoice document, which every company should be using this document. Okay. So, but as I told you,
If you wanted to create a purchase order, you know, purchase order screen will be like this. I'll show you a screen. I'll show you a purchase order here. This is your purchase order screen. If it get opened, I can show you. Sorry, it's a login screen. It's still loading. So that screen will be like this. Yeah, this PO screen will be like this. I'll zoom it a little bit so that everybody can see. So this is your PO screen. Whenever you enter ME21N, what will happen? You can able to create a PO. ME22, I said you always, the two number is always for change. 3 is always for display. If you have already created a PO by using ME23N, you can display that PO. Remember, you can't able to change any data. If you feel like, okay, this value, the quantity is not 1, not 2, I have to change this, you can type again ME22N. You can go to that screen, you can change that value or something, you know, whatever you wanted to change. If you want to change supplier, that also you can do. If you want to say change the purchase organization, that also you can do. See this screen. This is the only screen which you will see in the purchase order. See here. The first box which you can see is your vendor. This box is empty. You have to give a vendor value here. I told you in SAP, a vendor is not something like, you know, if you can type it here like Tata Groups or, you know, the Big Bazaar or Ratnadeep. You can't type it there. That Big Bazaar should have a definite vendor, the SAP value in your system. That Ratnadeep will have a definite value in your SAP system. That is called master data. The master data is our next topic, where you have to maintain the data of your suppliers. You have to maintain the data of all the materials you're going to sell or you're going to procure. Because you're a company, you'll sell some things and sometimes you'll buy some things. Because I'm having a Tata Group with me. I'm running Tata Motors. That means what? I'm selling my cars. In order to, I'm not only selling the cars, but I have to buy some material. What kind of material I have to buy? See, in order to manufacture a car, I need some materials. What kind of material I need? I need iron. I need aluminum. I need paint. You know, when I finally assemble the parts, you know, I need some paint. You know, to paint it. I need tires. I need spare parts. I need an engine. Engine might be of a different company. Engine might be of the same company. So I have to manufacture each and everything, or I have to buy it some from outside. Outside vendors I have to buy. So it's not like, you know, all the time you will be selling, but you know, how can you sell your end product without having to buy raw materials? Okay, so you have to buy some raw materials, right? So even though, as I told you, if I'm selling paper glasses, I need some paper material that I need to procure from outside. I can't able to manufacture my material also. Sometimes what will happen is that company only manufacturing the paper also. That paper they'll be using into this product. So they'll be having raw material also. But in order to even to make that raw material, something you need to buy. In order to make that raw material to finished good, you need something like, if he's using machinery, for that machinery also you have to buy. For that machinery, you need electric supply. For that machinery, you need fuel. So these kind of things you're gonna buy from outside. So it's always not possible like you're only selling. Sometimes you'll be buying also. You'll be buying office supplies and everything. So this is the column where you'll write the vendor name. So document date, whatever the date, you know, you are entering into the purchase document, that date it will take. Okay. Let's see if it is already opened. Create. See, the screen has opened now in SAP. Okay, I have opened your screen in SAP. This was a transaction called ME21N. So here, if you can drop down, you'll see so many, you know, documents here. But what you're doing here is simply you're creating a PO. So you have to concern about this only. We will discuss the remaining things when that particular topic comes. Stock transfer order, you know very well. What is a stock transfer order? Can I ask anyone here? Yes, internal by hello. Yeah, I can hear you. There is a Tata Group, so they want some goods in Hyderabad. So their stock is available in Mumbai, so they can create a purchase order. I mean, they have to raise something like STO. Okay, that's perfect. Simply you can say, if you are doing transaction between the same plants within the company code, अगर एक ही कंपनी के अंदर दो प्लांट्स है, समझो कि टाटा मोटर्स का प्लांट यहाँ पे हैदराबाद में एक है और मुंबई में एक है. टाटा मोटर्स के प्लांट के अंदर मेरे को इंजन होना है कार असेंबल करने के लिए, मेरे पास खत्म हो गए. मुंबई के अंदर इंजन अवेलेबल है, सो वहां से मैं इंजन मंगाऊंगा. मंगाने के लिए खाली फोन करके बोले तो नहीं भेजता हूँ मैं. यू शुड हैव एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. तो कंपनी के अंदर कंपनी के इंटरनली भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं. तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट STO भी है, जिसको हम स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बोलते हैं. तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, ये इसको सिलेक्ट करना पड़ता. बट अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पीओ डिस्कस कर रहे हैं. ओके राइट. सो पीओ डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपको ऑलरेडी परचेज ऑर्डर क्रिएटेड है तो यहाँ पे पीओ नंबर मार सकते हैं आपको, मगर यहाँ पे पीओ ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे हम वेंडर देंगे. सो वेंडर क्या कर सकते हैं, आप टाटा ग्रुप बोल के नहीं लिख सकते, यहाँ पे
टाटा ग्रुप बोल के लिख के एंटर मारे तो सीधा सीधा बोलता नहीं, वो टाटा ग्रुप यहाँ पे बोल के बोलता, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट इट हियर। यहाँ पे जो है टाटा ग्रुप एक वेंडर को बनाना पड़ता है। वेंडर को बनाना क्या है भाई, वेंडर को बनाने के लिए भी एक टी कोड है, वो टी कोड हम बोलेंगे XK01। वो डिस्कशन हम मास्टर डेटा में करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा आपको बीच में याद रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे वेंडर वेंडर बनाना पड़ता है आपको पहले, खाली आके मैं पीवो बनाता हूँ तो नहीं जमता। बिफोर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज सी, How बिफोर to दिस या मतलब how to create vendor, मतलब vendor कैसा बनाएंगे अपन, मतलब depends upon रिक्वायरमेंट देखिए। requirements. मैं सी आई एम रनिंग ए टाटा ग्रुप, ओके, टाटा मोटर्स में रन कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स वाले क्या कर सकते हैं, इसके पास 15-20 सप्लायर्स हो सकते हैं। एक बंदा क्या करता, आपको ऑयल सप्लाई करने वाला रहता, एक बंदा पेंट सप्लाई करने वाला रहता, एक बंदा उसको जो है टायर सप्लाई करने वाला, सीएट टायर या एमआरएफ वाला टायर सप्लाई करने वाला रहता। टाटा के टायर नहीं है खुद, एमआरएफ के टायर खरीदता उन्हें, नहीं तो सीएट के खरीदता। सो ऑल दोज वेंडर्स, कितने वेंडर्स है उसके आइडेंटिफाई करना। वो वेंडर्स को जाके क्या करना मालूम है, एक ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, देखो मैं मारता हूँ अभी, I'll show you that. No, I'll just show you the screen। मैं कैसे बनाऊंगा वो सब नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, बट आई शो यू द इनिशियल डिस्कशंस, क्योंकि आप लोग स्क्रीन को फेमिलियर होंगे। देन आपके पास एसएपी इंस्टॉल करने के बाद आप भी जो ब्राउज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं एसएपी में, ऐसा नहीं कि भाई क्या तो करे तो क्या तो होता होगा, नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छेड़ते रहो डॉक्यूमेंट, हर चीज ओपन करना है, क्या है भाई, ये क्या है, क्या स्टडी करना। सो यू कैन डू ऑल ऑफ देम। Okay. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हिच आई एम ओपनिंग द स्क्रीन, सो इसीलिए जो है यहाँ पे लोड होते रहता, कंपाइल होते रहता डेटा। सो याद रखिए एक चीज, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या बोला आपको, एक वेंडर बनाना पड़ता। वेंडर के लिए क्या करना है, XK01 ट्रांजेक्शन कोड है, ये क्लिक करे तो क्या होता, एक सप्लायर को आप बना सकते हैं। कितने सप्लायर से बोला आपके कंपनी वाला, टाटा ग्रुप से इंटरव्यू आपकी क्या बोलते हैं, एक डिस्कशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लाइंट क्लाइंट वर्कशॉप बोलते हैं। वर्कशॉप के अंदर क्या होता, यू विल गैदर द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है वहाँ पे। तो उन लोगों के रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मालूम होता है आपको, कितने परचेज ऑर्गेनाइजेशन होना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, वेंडर पूछ रहा, कंपनी कोड पूछ रहा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा, अकाउंट ग्रुप पूछ रहा, वेंडर पूछ रहा, कंपनी कोड, ये रेफरेंस क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ऑल ये सब हम डिस्कस करेंगे मास्टर डेटा में। अब यहाँ पे क्या मालूम होना आपको, वेंडर का स्क्रीन क्या ऐसे रहता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, वेंडर का नंबर तो आपको नहीं मालूम है पहले। यहाँ पे देखिए वेंडर को देखिए, ड्रॉप डाउन दिखता है, इसको बोलते हैं हम ड्रॉप डाउन ऑलवेज। क्या कहीं को दिखता, अगर कोई से भी फील्ड को मल्टीपल वैल्यूज है तो दिखता, मल्टीपल वैल्यूज बोलते बहुत एक ही वेंडर नहीं होता ना भाई, आपकी कंपनी में 15-20 वेंडर हो सकते हैं, या हजारों के वेंडर हो सकते हैं। ओके, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, देखिए कितने वेंडर्स ऑलरेडी एसएपी में दिखता है। यहाँ पे देखो कितने के वेंडर्स बना के, माइकेला मियर, फ्रैंक सम वैल्यूज, क्रिस मिलर, सो ये सब वेंडर्स है ये पूरे ऑलरेडी एसएपी जो है टेस्ट के लिए। देखो मोटर कंस्ट्रक्शन, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसको, इसको क्लिक करो तो क्या होता, समझो मेरे को इसका नंबर याद नहीं है भाई, हमेशा क्या होता अपने को, ये वेंडर के नंबर ये है, देखो यहाँ पे राइट साइड में ना, ये नंबर आपको मानना पड़ता है हमेशा 22100। ओके, मैं इसको क्लोज कर दे, क्या कर सकता हूँ, मेरे को वेंडर का नंबर अगर याद है तो 22120 में मार ले सकते हो यहाँ पे। मगर देखो आपको, आपको वेंडर का नंबर याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए, पीवो बना रहे हैं आप, क्या भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। सर्च करके देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास जो भी होना है वैल्यूज पूरे यहाँ पे रहता है, आप ढूंढ सकते हैं। मेरे को केविन ब्लेयर होना है तो इसको क्लिक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे सिलेक्ट होता। और उसके बाद अगर मैं इसको इन्हें होना है तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो वट एवर यू वांट यू कैन सी इट हियर। सो इसको बोलते हैं हम ड्रॉप डाउन, याद रखिए कि ड्रॉप डाउन जब भी क्लिक करते हैं आप, वहाँ पे यू विल गेट वैल्यूज। हाँ भाई, सो नाउ सो वो हो गया आपका XK01। बिफोर दिस आपको क्या करना है, कल एसएपी इंस्टॉल करने के बाद पहले बोले तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, देखो ये एसएपी इजी एक्सेस मेनू है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज SPRO, सैप प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, याद रखिए SPRO। जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस आप करते, वो आपको क्या बोल सकते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को बनाना भी है, या एक वेंडर को बनाना है, या एक मटेरियल को बनाना है, आपको एक कुछ भी अगर बनाना है, डेटा मास डेटा बनाना है, तो ये SPRO में जाना है। यहाँ पे SPRO बोल के टाइप करना। मैं जैसा आपको बोला, हर चीज के लिए एक टी कोड होता है, एक पाथ भी होता है। पाथ बोले तो क्या है, टी कोड आपको याद नहीं है भाई, देखो टी कोड याद नहीं है, मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे देखो आपको इजी एक्सेस मेनू है ना, ये मेनू में मैं क्या करूँ, टूल्स क्लिक करूँ, याद रखिए इसके। आपके पास जो मटेरियल है, मटेरियल में भी है वो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको ऑलरेडी रखे हुए यहाँ पे क्रिएट कंपनी, ऑलरेडी क्रॉस कर लिए क्या, ओके ओके ओके। सो इफ यू कैन सी इट हियर,
ये सब टॉपिक्स आपको जितने भी टॉपिक्स ये हमारे कवर हो गए, आई वांट एवरीबॉडी टू रीड ऑल ऑफ देम। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। फिर आप पूछेंगे सर ये थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग क्या है, ये पाइपलाइन हैंडलिंग क्या है, ये मैं भूल के आ जा रहा हूँ, मेरे को रिपीट करो। आई एम नॉट गोना रिपीट देम, ओके, रिमेंबर दिस। देखो यहाँ पे ये देखो मेनू पाथ में बोला SPRO, सैप प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोल के बोला मैं आपको, क्या बोला, ऐसे भी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं आप, SPRO पे करते हैं। SPRO कहाँ है यहाँ पे देखे, सो SPRO जो है सैप प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पे रीच हो सकते हैं हम, दो तरीके से कर सकते हैं। एक है आपका ट्रांजैक्शन कोड, जहाँ पे आप SPRO मारेंगे सीधा सीधा वहाँ को जा सकते हैं। सेकंड आपको पाथ होता है, पाथ कैसे होता है देखो, SAP इजी एक्सेस टूल्स, ऐसा दिया, ऐसा ये क्लियरली आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। आपके पास अगर प्रिंटेड कॉपी है तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, टुमारो यू गेट इट, यू नो, प्रिंट ऑल दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करिए आप। इफ यू हैव टेकन a printout of this, you can able to highlight the important points which I am discussing with you. So this is the point, you know, where you need to understand ये कहाँ ढूंढते हैं आप SAP easy access. So now I'm going to the SAP now. SAP में देखिए मैं जैसा बोला आपको, मैं क्या करा, टूल्स क्लिक करा यहाँ पे, उसके बाद क्या करना, कस्टमाइजिंग, क्योंकि कस्टमाइज करें ना भाई आप, SAP कस्टमाइज करें उसके लिए तो आप जाएंगे कस्टमाइजिंग में। ओके भाई मैं कस्टमाइजिंग में जा रहा हूँ। आपके क्या इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं ना आप, SAP को इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो यू विल गो टू इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, ये है एग्जीक्यूट, इसको क्लिक करना आप सीधा जो है वहाँ पे चले जाते। अब देखो यहाँ पे चले गए सीधा सीधा। यहाँ पे क्या करना, SAP रेफरेंस इमेज IMG, इसको क्लिक करेंगे। IMG का मतलब इम्प्लीमेंटेशन गाइड, याद रखिए यहाँ पे आ गए। हर चीज़ यही करते हैं आप। आपको अगर देखिए इंटरफेस स्ट्रक्चर, सर आपको यहाँ पे डिफाइन क्या बोलते हैं, आपका जो है कंपनी कोड को बनाना है। देखिए कंपनी को बनाना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिफाइन कंपनी बोल के है, एंड कंपनी कोड को भी यहाँ पे बनाता हूँ मैं। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, फिर बाजू का आता हूँ डिफिनेशन में जाके, कंट्रोलिंग लॉजिस्टिक्स में आता हूँ। लॉजिस्टिक्स में आता क्या है यहाँ पे, प्लांट है, देखिए प्लांट यहाँ पे बनाता हूँ मैं। कहाँ से शुरू होता है हमारा इंटरफेस स्ट्रक्चर, आप कोई बोल सकते हैं यहाँ पे, वेयर एग्जैक्टली इंटरफेस स्ट्रक्चर स्टार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट होता, कंपनी से। कंपनी के एबो कौन है भाई, क्लाइंट तो क्लाइंट को यहाँ पे कहीं बड़े भाई को तो यहाँ पे unmute करके मोहम्मद कासिम, थोड़ा प्लीज मेक श्योर यू आर Yes, आप लोगों का अगर सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। सो देखिए, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट गोना डिफाइन एनीथिंग टुडे, मैं यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ आज, मगर आई एम गोना सी आप लोग क्या करना है यहाँ पे, हर चीज यहाँ पे देखना है। इसके अंदर ऑफिस में जाना है, ये क्या क्या चीज़ आऊँगा देख लेना, ये क्या है सर बोल के नहीं पूछना कल, बिकॉज हमारा टॉपिक कल का ये नहीं है। बस आप जब भी खाली है, अब कल के दिन क्या करिए, आप कल के लिए ये सब चीज़ें मत देखिए ऑफिस क्या है, बट सिंपली बिकॉज हमारे ट्रांजेक्शन जरूरत नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे जितने भी चीज़ें ये आपके लिए नहीं है, आपका पार्ट ओनली लॉजिस्टिक्स है। और ये टूल्स के अंदर एक ही चीज़ आपको मालूम करना है, टूल्स में जाएंगे आप, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में IMG में जाएंगे, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो डायरेक्टली आप SPRO में चला जाएंगे जहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। अगर ये सब नहीं करना है भाई, मैं कुछ ऐसे मैं टी कोड मार लेता हूँ बोले तो SPRO बोल के मारना है, एंटर करना है, ओके, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, simply you have to click this SAP reference implementation guide. So you will be entered into the configuration area, display IMG screen. So in this display IMG screen you can configure everything. यहाँ पे सिर्फ MM वाले ही नहीं आते, हर कोई आता है यहाँ पे, फाइनेंस वाला भी आता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एंटरप्राइज में क्लिक करूँ, यहाँ पे डेफिनेशन में जाऊँ, आई कैन सी फाइनेंस हियर, कंट्रोलिंग हियर, लॉजिस्टिक्स हियर, SD वाले आएंगे यहाँ पे, MM वाला आएंगे यहाँ पे, वेयरहाउस वाला आएंगे। So everybody can come here and they will do their part. It's not like for MM people there will be different screen, for FI people there will be no, everybody will come here only. So देखिए यहाँ पे सब चीजें हैं, यहाँ पे आपको इसके अंदर क्या क्या देखना है मैं बोलता हूँ। कहाँ से कल जो है आप जब ओपन करेंगे, पहले आप जाएंगे ये टूल्स में जाके, ये कहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपन, कस्टमाइजिंग क्लिक करना, तो उसके बाद एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट एक क्लिक करेंगे तो आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन गाइड जो है आपका वहां पे चले जाते, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट SAP reference IMG. This is the screen where you will do all the customizations. Okay, so okay, the questions I can see in the chat box, but that's not relevant to our topic. Okay, execute project करेंगे, ये एक टी कोड, ये एक पाथ याद रखना आपको। ओके, ये पाथ का अल्टरनेटिव टी कोड क्या है भाई, SPRO का मतलब क्या है, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, उससे ज्यादा क्या भी इंटरव्यू में नहीं पूछता आपको, कस्टमाइजेशन क्या करते भाई बोल के पूछता हो नहीं,
सर हम SPR1 में जाके इम्प्लीमेंटेशन गाइड के स्क्रीन में जाके करते बोल के बोलना। इफ ही इज आस्किंग अच्छा इसका पाथ कुछ याद है क्या तुम्हारे को, बोल दो सर कुछ भी नहीं है, इजी एक्सेस में जाके टूल्स में जाके IMG बोल के बॉक्स रहता, उसको क्लिक करते एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट आता, वहां पे जाके हम करते, ऐसा बोल के बोलना है बस। ये दो चीजें यहाँ पे पूछा, इसके अलावा क्या भी नहीं पूछने वाला है आपको। ओके चलो ये हो गया आपका टूल्स वाला बॉक्स, एक बॉक्स इसको याद रखना है। सेकंड बॉक्स आप क्या करना है, लॉजिक्स को ओपन करो, क्या क्या है देखो पहले इसके अंदर। आई एम नॉट सेइंग यू टू कॉन्फिगर एवरीथिंग, खाली क्या क्या है देखना आपको, ये कई को देखना, एवरीडे देखते रहना इसको, एवरीडे वीक में 2-3 मरतबा ब्राउज करना। ब्राउज करो तो क्या होता, SAP के बाद आप लकीली इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गए, जॉब भी कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आप जब कंसीडर करते रहते या आपका टीम लीड या आपके जो है क्लाइंट्स वगैरह सब कॉल पे रहते, उन लोगों को कुछ चीज़ बताना रहता आपको, उन लोगों को बताना रहता कि PO कैसा बनाते हैं या नहीं तो GR कैसा बनाते। सो आप जो है ढूंढ लेते नहीं बैठना, खाली टी कोड एक मारते बोलते, उन्हें बोलता सर टी कोड को छोड़ के और कुछ वे है क्या, तो उन्हें बोलता पाथ भी है, तुम बोलते पाथ भी है बोल के बोलते, अब तुम ढूंढ लेते नहीं बैठना वहाँ पे जाके, भाई कहाँ होगा बोल के। सो यू हैव टू ब्राउज दिस थिंग्स एवरी डे, आपको याद रहेगा। सो डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सिंपल है इसके अंदर, क्योंकि रिमेनिंग पर दूसरों का ही है। देखो SD है ये आपका नहीं है, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन ये आपका नहीं है, प्रोडक्शन आपका नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस आपका नहीं, प्लांट वाला प्लांट मेंटेनेंस, ये PP वाले का, SAP PP वाले का, ये SAP PM वाले का, ये कस्टमर वालों का, ये क्वालिटी वालों का है, SAP में QM रहता है क्वालिटी में उसका है, ये सब आपके नहीं है। सिर्फ आपका कौन सा है बोलो, मटेरियल्स मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट। ERP के अंदर आपका जो मॉड्यूल है, आप हम जो क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर नीचे की चीज़ों में क्या होता है अपने को जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्राउज करके देखना है तो यू कैन ब्राउज इट। ओके MM जो पढ़ लिया उसको SD जो है खाली 10 दिन में सीख ले सकता हूँ, याद रखिए एक चीज़, SD आपको सीखना है पहले, तो SD सीखने के लिए आपको 2 महीने लगते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, बट इफ यू हैव ऑलरेडी लर्न MM, SD 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर सीख सकते हैं आज, बिकॉज जितने भी चीज़ें MM में करते हैं आप, MM में क्या रहता है, परचेज ऑर्डर रहता, SD में क्या रहता है, सेल्स ऑर्डर रहता, वही चीज़ है सिंपली। MM में परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं आप, SD में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसमें सेल्स ग्रुप बोलते हैं, इसमें परचेजिंग ग्रुप बोलते हैं, तो ऐसे कुछ सेम रहता, खाली टर्मिनोलॉजी चेंज होते रहते हैं। सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द हमेशा टॉप में कौन सा है देखो यहाँ पे, मटेरियल्स मैनेजमेंट, ये आपका फाउंडेशन है भाई, याद रखिए MM इज अ फाउंडेशन। MM के सिवा आप बोलेंगे भाई मैं SD सीखता हूँ, WM सीखता हूँ, तो वो उसको बहुत टाइम लगता, उसको भी MM के बेसिक सीखना पड़ता, तो पहले जो है हम MM से स्टार्ट करें। तो MM सीखने के बाद आप कर सकते हैं। लेट मी चार्ज माई लैपटॉप, गिव मी 1 सेक। सो यस, अभी जो मटेरियल भेजे ना, वो मटेरियल में सब है प्रिंटआउट लेने के लिए, तो व्हाट्सएप करे देखो मटेरियल। या सो नहीं ओके या सो यहाँ पे देखिए मटेरियल मैनेजमेंट पे क्लिक करो, मैं यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है, आप देखिए यार ये चीज़ें देखिए, ये पूरी चीज़ें आपके चाहिए, याद रखिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जितने चीज़ें आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया है आपकी SAP की। SAP में जो भी करते हैं आप ये फोल्डर में करते हैं। ओके एवरीडे आपको SAP खोलना, ये मटेरियल मैनेजमेंट जाना, ये सब एक एक बॉक्स में क्या क्या है देख लेना, याद रख लेना। मैं आपको पूछता हूँ कि भाई फलाना परचेज ऑर्डर कहाँ है या वैल्यूएशन असाइनमेंट कहाँ है, तो आप बोलना है सर यहाँ पे देखो ये फोल्डर में, ये फोल्डर में। वैल्यूएशन असाइनमेंट बोला आप वैल्यूएशन के अंदर है, स्प्लिट वैल्यूएशन पूछा आप वैल्यूएशन में है। आपका स्क्रीन सही नहीं आ रहा असगर भाई, अच्छा 1 सेकेंड, टाइल्स में आ रहा, पोर्ट राइट टाइल्स में। क्या क्या मेरा बराबर स्क्रीन है, नहीं दिख रहा क्या? बराबर आ रहा, बराबर आ रहा। अच्छा नहीं, आप बराबर बराबर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बराबर आ रहा। बराबर है, ये भी इंटरनेट इशू है। देखिए आपके पास इंटरनेट इश्यू होगा, जरा देखिए नेक्स्ट। सो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला आप लोगों को, हम लोग फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पे इजी एक्सेस मेन मेनू पे है भाई, याद रखिए ये मेन मेनू है आपका SAP का। SAP में जब भी लॉगिन करते हैं आपको ये दिखता, इसको बोलते हैं आप SAP इजी एक्सेस मेनू, याद रखिए। ये यहाँ पे हमेशा जब भी SAP लॉगिन करते यू विल सी दिस SAP इजी एक्सेस मेनू। यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले मैं जो बोला टूल्स में का एक ट्रांजेक्शन था, एक पार्ट था, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड था आपका लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स में जाएंगे आप, मटेरियल मैनेजमेंट आता। सो मटेरियल मैनेजमेंट व्हाट यू आर गोना डू, एक देखिए एक एक बॉक्स ओपन करेंगे, वी विल सी व्हाट आर देयर। सो आई एम ओपनिंग द फर्स्ट बॉक्स नाउ, दैट इज परचेजिंग। ओके
Someone asked me, sir, what are the topics, what is our syllabus? This is our syllabus, remember. Purchasing, inventory management, a logistics verification, physical inventory. So all these topics which we discussed already. Okay, whatever the things we are covering in this folders, all this is your syllabus. Okay, so now purchasing. First, I'm clicking this purchasing tab, purchasing folder. See how many purchasing components you can see. एक purchasing component में क्या क्या रहता है? Purchase order रहता है, purchase requisition रहता है, आउटलाइन अग्रीमेंट्स. अग्रीमेंट्स के बारे में बात करें हम लोग. एक रहता है शेड्यूल एग्रीमेंट रहता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है. कोटेशंस के बारे में हम लोग बात करें, आरएफक्यू रहता है, कोटेशन रहता है. मास्टर डेटा मैं बोला आपको, मास्टर डेटा क्या है भाई? व्हाट इज द मास्टर डेटा? vendor master data. Recording of customer data related to material. All branches of this. Complete Master data of the data. client. Complete data of the client or the vendors. Data which changes rarely. यस, मास्टर डेटा चेंज होते रहता है रेयरली. दैट्स अ गुड वन. दैट मास्टर डेटा में क्या क्या रहता है देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अभी. मास्टर डेटा में क्या क्या रहता है भाई? पहली चीज हम लोग को बोला, आपको एक परचेज ऑर्डर बनाना है तो पहली चीज क्या होना, आपको ऊपर सप्लायर होना पड़ता. वो सप्लायर को ऑलरेडी मेंटेन करके रखना पड़ता है, सप्लायर का डेटा मेंटेन करना आपके पास, क्योंकि हर सप्लायर को कुछ रहते चीज़. मतलब एक सप्लायर है, उसका एड्रेस अलग रहता, उसका फोन नंबर अलग रहता, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन रहता, उन्हें जो डिस्काउंट आ रहा है उसके डिस्काउंट आप लिख लेते, सब डिटेल्स रहता. एक मटेरियल है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, मटेरियल का कलर क्या है, कोडिंग क्या है, सब चीज़ें लिख लेता. सो परचेजिंग कंपोनेंट जो पूरे है, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेशन, आउटलाइन एग्रीमेंट, आरएफक्यू, मास्टर डेटा एंड एनवायरनमेंट. सो मास्टर डेटा अगर जब मैं क्लिक करूँ, क्या क्या मिलेंगे इसमें? इन्फो रिकॉर्ड बोल के है, सोर्स लिस्ट बोल के है, कोटा अरेंजमेंट बोल के है, ये सब वेंडर है. देखो यहाँ पे वेंडर बोल के है, कंडीशन है, यहाँ पे सर्विस कंडीशन है, टैक्सेस है, एवरीथिंग, ऑल दिस कंप्लीट मास्टर डेटा. ये सब हम मास्टर डेटा टॉपिक में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर दिस? ओके, वन बाय वन. उसके बाद एक एक चीज ओपन करके देख लेना आप क्या क्या रहते हैं. परचेज ऑर्डर ओपन कर लो, बिकॉज आज जो है हम इस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं. खाली सिंपली नो, आई एम शोइंग यू ऑल द स्क्रीन्स व्हाट एक्चुअली देयर. देखो परचेज ऑर्डर ओपन करा मैं, यहाँ पे क्या है देखिए, यू हैव क्रिएट चेंज डिस्प्ले. क्रिएट का डी कोड याद है किसी को? क्रिएट का पाथ ये है, देखो. अगर पाथ आपको याद नहीं है तो क्या करना, सीधा एम्प्टी बॉक्स में क्या मारना है यहाँ पे? ME21 है. ME21 and you have to type. अगर I wanted to change PO, so what T code I have to type? ME22N. ME22N. That shows your display. Okay. उसके बाद देखिए 23. मेंटेनेंस सप्लीमेंट बोल के मास मेंटेनेंस यहाँ पे है. उसके बाद ये क्रिएट का फोल्डर में क्लिक करूंगा मैं. क्या क्या है कोको है ना? क्रिएट का जब अपन ओपन करेंगे, वी हैव दिस. परचेज ऑर्डर को बनाना पड़े तो कितने पैरामीटर्स यहाँ पे देखो, वेंडर, सप्लाई, प्लांट, नोन. मतलब आपको वेंडर भी मालूम है, प्लांट भी मालूम है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना आप. अगर वेंडर नहीं मालूम है आपको तो भी आप परचेज ऑर्डर बना सकते हैं यहाँ पे, ये सेक्शन क्लिक करके. उसके बाद वया रिक्वेजिशन असाइनमेंट लिस्ट. अगर आपके पास ऑलरेडी परचेज रिक्वेशन बना हुआ है, वो रेफरेंस परचेज रिक्वेशन ले लेके आप पीओ बना सकते हैं. रिमेंबर दिस. उसके बाद ऑटोमेटिकली, तो परचेज रिक्वेशन ऑलरेडी है तो उसको ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो है पीओ बनता. सो ऐसे एक एक चीज ओपन करते जाइए, खाली देख लेते जाइए बस. उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप हर चीज ओपन करके क्या है देखना, खाली ओपन करके देख लेते रहना, क्या इसके अंदर क्या क्या है भाई, पीओ के अंदर क्या है, या रिलीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं खाली. ओके, ये लिस्ट डिस्प्लेस में क्या क्या है देखो. लिस्ट क्या है मालूम है? ये जितने भी पीओस बना था, एक आपका जो है समझो आपका क्लाइंट पीओस बना लिया भाई, हजारों की पीओ बने हुए है उसके पास, कितने कितने वीवो पीओस है, उसको पीओ को उन्हें देखना चाह रहा हूँ. सो क्या कर सकता है, यहाँ पे लिस्ट देखना चाह रहा हूँ कितने पीओस है मेरे पास. यहाँ पे देखो भाई वेंडर है, मतलब एक स्पेसिफिक वेंडर को चूज करके वो वेंडर को कितने पीओस आप इश्यूज करे देखना है तो वेंडर को क्लिक करना. अगर आपको एक मटेरियल पे कितने वेंडरों को पीओस भेज के बोलते हैं, मटेरियल क्लिक करना. एक मटेरियल ग्रुप से करना है तो एक ट्रैकिंग नंबर रहता है, एक पीओ नंबर रहता है, सप्लाइंग पॉइंट रहता है. ये कुछ भी पैरामीटर देके आप यू कैन सी द लिस्ट. ओके, ये मोस्टली आप नहीं करेंगे, आपका क्लाइंट करता, जितने पीओस बना लिया उन्हें उसमें देख लेता. रिपोर्टिंग रहता है यहाँ पे, इनबाउंड डिलीवरी है, मैसेजेस है, सब चीज़ें हैं. ठीक है, दिस इज इन परचेज ऑर्डर. ये परचेज रिक्वेशन. ऐसा ईच फोल्डर खोलो, आप देख लो. यहाँ पे आपको टी कोड से याद नहीं है तो यहाँ से कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं यहाँ से. देखिए परचेजिंग में क्लोज कर दे रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग परचेज, आई एम गोइंग इनटू इन्वेंटरी मैनेजमेंट. इन्वेंटरी मैनेजमेंट पहला फोल्डर क्या है? गुड्स मूवमेंट. इन गुड्स मूवमेंट यू हैव सी गुड्स मूवमेंट मीगो. मीगो कब करते हैं आप बोलो? माइगो. व्हेन आई एम गोइंग टू डू माइगो. Goods receipt. Goods receipt. व्हाट इज गुड्स रिसिप्ट? मतलब after we get Confirming that we have received the To receive physical the stock in warehouse. yes. गुड्स मूवमेंट में क्या करते हैं अपन, माइगो में क्या करते हैं, जब जो है परचेज ऑर्डर बना के भेज दी है, उन्हें आपको आइटम्स भेज दिया, सो आप लोग बोलते हैं हाँ वी हैव रिसीव्ड आइटम, तो चेक कर लेते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि गुड्स एक्नॉलेज करते. एग्जैक्टली, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट. सिंपली इट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट वी हैव रिसीव्ड ऑल दिस क्वांटिटीज व्हिच वी हैव ऑर्डर्ड. ओके, ये हो गया आपका गुड्स रिसीप्ट माइगो. ठीक है, ऐसे आपको ट्रांसफर पोस्टिंग बोल के भी है. ट्रांसफर पोस्टिंग कब यूज करते हैं?
कोई बता सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई वेयरहाउस में काम करने वाले हैं तो? एनीबॉडी फ्रॉम एसएपी अदर बैकग्राउंड्स? व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर पोस्टिंग? ट्रांसफर पोस्टिंग कब करते बोलिए? देखिए, मैं जैसा बोला आप लोगों को, एसटीओ बोल के बोले आप, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। ये क्या है? यहाँ से प्लांट को, वहां के प्लांट को जो है कुछ भी आइटम मूव करना है, एसटीओ बनाते, एसटीओ को बेस करते हुए स्टॉक्स को मूव करता, ये एक चीज है। मगर हैदराबाद में जो है आजू बाजू में 2 प्लांट्स है, 2 स्टोरेज, क्या बोलते हैं प्लांट्स है, उसके अलग अलग स्टोरेज लोकेशन है। एक स्टोरेज लोकेशन से और स्टोरेज लोकेशन को स्टॉक मूव करना है आपको, तो ट्रांसफर पोस्टिंग यूज करते। ट्रांसफर पोस्टिंग यूज कर क्या करते, खाली यहाँ से रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन, सेंडिंग स्टोरेज लोकेशन, ये दोनों के नंबर मार देते, इसके लिए एसटीओ जरूरत नहीं है, एसटीओ की जरूरत नहीं है, समझ रहे? स्टॉक, लेकिन स्टॉक एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जा रहा ना, तो एसटीओ जरूरी है ना यहाँ पे। देखो क्या होता, एसटीओ कब जरूरत है? अगर देखियो मेरे को, मैं जैसा बोला आप लोगों को, यहाँ पे एक कंपनी कोड है, ठीक है, 2 किस्म के एसटीओ है यहाँ पे। एक एसटीओ को हम ट्रांसफर पोस्टिंग भी बोलते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग कब बोलते हैं? एक प्लांट के अंदर ही चाहिए उन्हें, एक प्लांट के अंदर है, डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन से, ये स्टोरेज लोकेशन से और स्टोरेज लोकेशन को मूव कर रहे हैं आप, इसको मैं ट्रांसफर पोस्टिंग बोलता हूँ। इफ इट इज बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट कंपनी कोड्स है, वहां पे एसटीओ बोलता हूँ। फिर एसटीओ में देखिए, इंट्रा एसटीओ बोल के है, इंटर एसटीओ बोल के है, वो भी हम जब वो टॉपिक आएगा जब डिस्कस करेंगे। इंटर एसटीओ बोलते हैं, इंट्रा एसटीओ, इंटरेस्ट में सुनते हैं आप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसटीओ आर देयर, इंट्रा एसटीओ, इंटर एसटीओ। एक ही कंपनी कोड के अंदर 2 प्लांट्स के बीच में आप अगर कुछ चीज मूव कर रहे हैं, उसको बोलता हूं मैं इंटर एसटीओ। ओके, सॉरी, इट इज इंट्रा एसटीओ। इंट्रा मतलब क्या है? एक कंपनी कोड के अंदर जितने प्लांट्स है, एक प्लांट से और प्लांट को कुछ मूव कर रहे हैं, मैं उसको बोलता हूँ इंट्रा एसटीओ बोलता हूँ। इंटर एसटीओ कब बोलते हैं? मतलब 2 कंपनीज के बीच में 2 प्लांट्स है, वो अलग अलग कंपनीज के, मतलब टाटा मोटर्स का प्लांट से इधर टाटा स्टील का प्लांट है, ये 2 प्लांट से एक से एक को कुछ भी मूवमेंट हो रहा, तो दैट आई विल कॉल्ड एज इंटर स्टेट एसटीओ, और इंटर एसटीओ मैं बोलता हूँ उसको, याद रखिए। ये चीजें जो है आगे डिस्कशन में आते हैं, डीप में डिस्कस कर सकते हैं, खाली बेसिक चीजें रहते हैं। Sir, a question है, can we call intra STO as TP? इंट्रा एसटीओ एज TP. ट्रांसफर पोस्टिंग, या वी कैन कॉल इट एज टीपी एज ट्रांसफर पोस्टिंग आल्सो। Right. Thank you. ओके, अच्छा, तो भाई 2 टर्मिनोलॉजीज कई सवाल भी कर सकते हैं आप। भाई देखो, आप जी। क्या बोल रहे हैं, इंट्रा एसटीओ बोल रहे हैं, 2 प्लांट्स के बीच में मूवमेंट्स हो रहा है, तो इंट्रा एसटीओ बोल रहे हैं, तो ठीक है। उसको ट्रांसफर पोस्टिंग भी बोल रहे हैं, ये डिफरेंस क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग को और एसटीओ को डिफरेंस क्या है? एसटीओ में क्या होता है, याद रखिए, स्टॉक फिजिकली मूव होता, फिजिकली। डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ऐसे भी इंटरव्यू क्वेश्चन मारेंगे गूगल में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन ये भी रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रांसफर पोस्टिंग एंड स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। ये दोनों के अंदर भी क्या होता है, 2 अलग अलग स्टोरेज लोकेशन, जो अलग अलग प्लांट्स के, वहां से स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, ओके। फिजिकल मूवमेंट अगर हुआ, उसको इंटर एसटीओ बोलते हैं। फिजिकल मूवमेंट मतलब मुंबई से हैदराबाद को तो शिप कर भाई, मेरे को मूव कर दे, तो उसको बोलते हैं हम इंटर एसटीओ। इंट्रा एसटीओ कब बोलते हैं कि खाली जो है वर्चुअल मूवमेंट होता, फिजिकली जरूरत नहीं है। फिजिकली बोलते कहीं को मूवमेंट नहीं होना बोले तो देखो, मेरे पास क्या है, मैं जैसे बोला मुंबई का प्लांट एक है, एक जो है हैदराबाद में प्लांट है, मैं एक मुंबई के प्लांट से लेना है कुछ चीज़, तो मैं क्या कर रहा, इंटर एसटीओ बना के जो है, इंट्रा एसटीओ बना के वहां से स्टॉक से यहाँ मंगा लिया, क्योंकि एक मैं कस्टमर पूछ रहा था, उसको दे दिया मंगा के मैं। मगर मेरे को क्या हुआ, मेरा जो कस्टमर है उन्हें मुंबई में थे, हैदराबाद में नहीं है उन्हें, तो वहां का वहां उन्हें लेना है, सिंपली वहां का वहां बाई करना है, समझे? तो या वहां का स्टॉक ऑलरेडी जो है एक गोडाउन में रखा हुआ है, वो नियर टू हैदराबाद है, जहां से मैं स्टॉक ऑलरेडी ले लिया, तो मेरे को खाली वर्चुअल पोस्टिंग करना है, सिस्टम में दिखाना है कि भाई स्टॉक देखो, वहां का जो स्टॉक था मैं यहाँ पे मूव कर लिया ऑलरेडी। एसटीओ नहीं बने, मैं एसटीओ नहीं बना था जबको, मगर मूव कर लिया मैं, तो ऑलरेडी आपका मूड है, या ऑलरेडी वहां से कस्टमर उठा ले रहा, तो वर्चुअल मूवमेंट्स करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या होता, सिर्फ स्टॉक्स को दिखाते आपके भाई ये स्टोरेज लोकेशन से यहाँ को मूव करा, मगर क्या होता फिजिकली जो है, फिजिकली क्या होता वहाँ पे, फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, समझ गए ना? सो दैट इज द वन। खैरियत सो ये हो क्या गया हुआ आपका भाई? इन्वेंटरी हो गया मैनेजमेंट, ना? ये हो गया आपका गुड्स मूवमेंट, एंड देन अच्छा वी अच्छा आर ठीक है गोइंग टू मटेरियल डॉक्यूमेंट। ये जरा ठीक। म्यूट करिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जरा म्यूट करिए, सवाल जो भी है टॉपिक के बाद बात कर सकते हैं अपन। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे बोला आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, हर फोल्डर क्लिक करके देख लेना भाई क्या क्या है इसके अंदर, ओके। सो ये हर टॉपिक जो है हम आगे वाले जो है क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर ऑल दिस। सो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, एमआरपी है, सर्विस मास्टर है। सर्विस मास्टर क्या है? अब तक हम लोग सुने सप्लायर मास्टर सुने, आप मटेरियल मास्टर सुने, सर्विस मास्टर क्या है? मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला भाई,
आपकी कंपनी को मटेरियल्स की और सप्लायर्स की जरूरत भी रहती है, और साथ में साथ सर्विसेज की भी जरूरत रहती है। सर्विसेज मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्विस यू नीडेड, पेंटिंग सर्विस यू नीडेड, दिस काइंड ऑफ सर्विसेज योर कंपनी मस्ट बी नीडिंग। सो वो चीज़ हम पूरे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं सर्विस मास्टर में। ठीक है, ये बॉक्स हम पूरे ओपन करके क्या क्या है देख लेते रहना आप लोग। एक चीज़ करिए एसएपी आने के बाद, उसके बाद क्या करना, फिर अंदर जाना। आप अंदर बोले तो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड पे जाना है, SPROIMG। नाउ यहाँ पे देखिए, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर टू कॉन्फ़िगर, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे, दुनिया एसएपी की पूरी दुनिया यहाँ पे, बहुत सारे हजारों के ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, हजारों के पाथ है। यू नो नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। याद रखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखना, खाली देखिए सुनते रहिए। यहाँ पे ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, कैन यू एबल टू सी दिस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हियर? Yes. ये याद रखिए। Yes. एंड द सेकंड वन इज आई एम स्क्रोलिंग Yes. डाउन, नीचे जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कहीं आपको मटेरियल मैनेजमेंट दिख रहा है, देखिए जी दिख रहा है दिख मटेरियल मैनेजमेंट, ये मटेरियल मैनेजमेंट, ये दो ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, बस सब चीजें छोड़ दीजिए आप। ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका नहीं है, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन आपका नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट आपका नहीं है, सब चीजें इट्स नॉट कंसर्न टू यू। आपको दो ही चीजें याद रखना है, वन इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, second is material management. You have to remember only these two parts. Now the next stage is, what you have to do is, I'm not going to show you here how you are going to configure each and every enterprise part here, because that's we have postponed it to tomorrow. So just what you have to do is, I have told you to go into each and every transaction to see what is there. See, I have clicked this enterprise structure, I have seen here, see to the her transaction ke samne, in front of every transaction there is a symbol of a document with an with goggles. Okay, what is the symbol means? It is a document actually. If you click the document contains some text, that will show you. देखिए जो भी मटेरियल आपके पास है ना, मतलब जो भी था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। It will be written here, the definition of that. What is this? In this section you will learn how to portray the specific organization structure of your business in ERP system to help you portray your company structure, different accounting, logistics and human resources. ये सब चीज़ें, मतलब आपको क्या मिलता है यहाँ पे? डेफिनेशन मिलता है, याद रखिए। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बोल के, डेफिनेशन के सामने एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, आप क्या क्या करना है इसके अंदर, एवरीथिंग विल बी रिटन हियर। ओके, सो ऐसे आप जब भी फ्री है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट, वहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, तो क्लोज करिए इसको। जब भी आप फ्री है, यू हैव टू ब्राउज ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। हम देखिए यहाँ पे मैं क्या करा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गया, आप गॉन टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन आई वेंट टू डेफिनेशन, बिकॉज आई हैव टू डिफाइन माय एंटरप्राइज। ओके, डिफाइन में गया, मैं डिफाइन में गया तो क्या है, आपका हिस्सा कौन सा बोला इसके अंदर, व्हाट इज योर पार्ट? Material management. Yes, I am going to materials management now. So materials management में क्या क्या है? मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, दो ही चीज़ें हैं। अरे क्या भाई, कल आप क्लाइंट बोले, क्या क्या की बोले, कंपनी कोड बोले, वो क्या बोलते हैं प्लांट बोले, मगर वो दिख रहा नहीं क्या भाई यहाँ पे चीज़ें बोले, तो भाई वो चीज़ें MM वाला नहीं करता। कौन करते हैं? देखो ऊपर देखो, FI में जाते हैं, FI में कौन है? देखो यहाँ पे डिफाइन कंपनी है, तो डिफाइन कंपनी कौन करता है? FI वाला करता। आप कहने की जरूरत नहीं है। कंपनी कोड बनाना है, कौन बनाता? FI वाला बनाता। सो दैट्स इट, हो गया वहाँ पे। उसके बाद लॉजिस्टिक्स में जाइए आप। ये लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, हमेशा समटाइम्स लॉजिस्टिक्स की अलग टीम रहती है, WM वाले उल्ना कर लेते, समटाइम्स आप कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लोकेशन प्लांट है, देखो यहाँ पे डिफाइन कॉपी डिलीट प्लांट, और लोकेशन भी यहाँ पे है। तो ये प्लांट कौन बनाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम MM वाले बनाते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में WM वाला नहीं रहता, लॉजिस्टिक्स वाला अलग से नहीं रहता। WM वाले को लॉजिस्टिक्स कंसल्टेंट बोलते हैं, हमेशा याद रखिए। तो हमेशा WM वाला रहना, दोनों बोल के जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम WM वाला नहीं रहता। मैं जैसा बोला आपको, MM कंपलसरी मॉड्यूल है, हर प्रोजेक्ट में रहता, हर प्रोजेक्ट में MM रहता, कहीं ना कहीं छोटा भी हिस्सा रहता, बड़ा भी हिस्सा रहता, मगर MM रहता। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आप क्या क्या देखेंगे रिपीटेडली, याद रखिए, MM SD FICO, ये तीन चीजें हर प्रोजेक्ट में रहते। कुछ प्रोजेक्ट्स में और ज्यादा बड़े रहते, उसमें WM भी ऐड होता। कुछ प्रोडक्ट्स में प्रोडक्शन का ज्यादा है तो PP भी ऐड होता। कहीं अगर वेयरहाउस की एक्टिविटी ज्यादा है, लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, वहाँ पे जो है SAP WM भी रहता, तो वो चीज़ें भी रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक्स के अंदर प्लांट भी बना सकते हैं आप, लोकेशन भी बना सकते हैं। ओके, तो उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाइए, ये आपका हिस्सा नहीं है, मगर देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉपी डिलीट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो यहाँ पे जाता सेल्स वाला, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना था यहाँ पे बनाता, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, जैसा आपका परचेसिंग ग्रुप है ना, यहाँ पे सेल्स ग्रुप रहता। ओके, तो ये सेल्स वाले बनाते हैं, आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी है, डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट में दिखा रहा, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या कर दे। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, व्हेन आई एम क्लिकिंग मटेरियल मैनेजमेंट, व्हाट यू कैन सी, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, क्या होगा इसके अंदर, ओपन करके देखेंगे एक बार।
तो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट एग्जीक्यूट बटन, इसको क्या बोलते हैं, जो राउंड बटन जो है ना, जिसको एक घड़ी के सिंबल है, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन बटन है, उसको क्लिक करते एग्जीक्यूट होता। यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लांट एंटर करो, बोल रहा मतलब क्या है, देखो आप जो भी स्टोरेज लोकेशन बना रहे हैं, स्टोरेज लोकेशन हमेशा किसके अंडर रहता भाई, प्लांट के नीचे रहता, अंदर रहता। प्लांट रहते तो स्टोरेज लोकेशन रहता, खाली स्टोरेज लोकेशन रख ले कोई भी नहीं बैठता, हमें प्लांट रहना पड़ता कंपलसरी। वो प्लांट में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सेल्स होते हैं, उसको बैकअप में एक स्टोरेज लोकेशन रहता है, एक वेयर हाउस बोलते हैं हम, एक गोडाउन बोलते हैं, गोडाउन का टर्मिनोलॉजी के हमें प्लांट बोलते हैं, या तुम वेयर हाउस बोलते हो उसको, मैं क्या बोलता हूँ उसको, प्लांट बोलता हूँ, ठीक है। तो स्टोरेज लोकेशन कंपलसरी क्या है ना, प्लांट मानना पड़ता है यहाँ पे। प्लांट क्या है, आप ड्रॉप डाउन, आपके पास बहुत सारे प्लांट्स है तो ड्रॉप डाउन कर लेना, ड्रॉप डाउन का बटन क्लिक करेंगे तो यू विल सी नंबर ऑफ प्लांट, जितने प्लांट्स आप बनाए एसएपी में, यहाँ पे देखते हैं आप, देखिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम मार के भी देख सकते हैं आप, देख कितने की प्लांट्स है, देखो यहाँ पे वॉलड्राफ, न्यूयॉर्क, हैमबर्ग, न्यूयॉर्क प्लांट्स है, देखो यहाँ पे कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 2000 सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2222 आ गया यहाँ पे, बाद में ओके बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब मैं जो भी स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर रहा हूँ वो कौन से प्लांट के अंदर क्रिएट होता भाई, ये 2200 प्लांट के अंदर क्रिएट होता। तो मतलब एक चीज समझना यहाँ जरूरी है कि भाई मेरा कंसल्टेंट होना, मैं खाली स्टोरेज लोकेशन बना दूँ पहले जल्दी आके बोले तो नहीं जमता, तुम्हारे से पहले उन्हें प्लांट बनाना को तो बेगन आके, या तुम ही बनाना जाके, अरे भाई डायरेक्ट प्लांट बना दिया बोले तो प्लांट से पहले कंपनी बनना जरूरी है, कंपनी से पहले कंपनी कोड बनना जरूरी है, कंपनी कोड बनाने के लिए तुम्हारा क्लाइंट रहना जरूरी है, तो पहले क्लाइंट को बनाते, क्लाइंट बनने के बाद कंपनी बनता, कंपनी का नाम डिफाइन करते, कंपनी के नाम के बाद कंपनी कोड को मैं असाइन करते, कंपनी कोड के बाद प्लांट बनता, प्लांट के बाद मैं जैसा ऑर्डर आपको बताया एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर, वो ऑर्डर हम फॉलो करते। अच्छा एक चीज बताइए, वन थिंग आई वांटेड टू हियर फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स, इफ एनीबडी फ्रॉम फ्रॉम दीस पार्टिसिपेंट्स हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी, I know that some of you from Bangalore, some of you from Maharashtra. If any one of you are unable to understand Hindi, so I can focus all my topics in English only. I can able to do this. Anybody? कोई है क्या ऐसा? Anybody there who can't understand Hindi? Anybody? That seems like everybody can understand Hindi. Okay. So problem नहीं है. Yeah, we can. Yeah. So that's fine. Yes, Okay. we can. That's for your easy understanding. Okay. So देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे देखिए जब से बैग में प्लांट मार के हम एंटर करें तो यहाँ पे कितने देखिए, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टोरेज लोकेशन ऑलरेडी बने हुए देखे, 001 क्या की बोरा है ना, 002 ये बोरा, मेरे को नया बनाना है, क्या करना बोलो, नया बनाना, क्या करूँ, इतना सैप इंटरफेस इतना इजी रहता भाई, हर छोटा बच्चा भी कर लेता, ओपन करके देता उसको। न्यू एंट्रीज है, मगर न्यू एंट्री से पहले एक चीज है यहाँ पे, ये क्या होगा ये देखना आप लोग ओपन करके, हर चीज मैं क्या बोला आपको, एग्जैक्टली, ये पेन का सिंबल जो है, पेंसिल का वो एडिट सिंबल है, और मतलब ऊपर का जो लाइक गॉगल्स का सिंबल जो है डिस्प्ले हो, तो इसको मैं क्लिक करता क्या होता है, ये पर्टिकुलर 1110 जो दिख रहा है ना आपको, इसको आप अगर देखना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करना। ओके, क्योंकि ऑलरेडी कोई अगर बना के है समझो, आप चाह रहे हैं कि इसको देखना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करना। देखो मैं क्लिक करके वो क्लिक करा था, यहाँ पे देखो एड्रेसेस बोल के, एड्रेसेस पे क्लिक करा मैं, देखो यहाँ पे कुछ एड्रेसेस अपडेट करके नहीं है एड्रेस कुछ भी यहाँ पे, उसके बाद your voice is not audible. Voice नहीं आ रही भाई, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, जबरदस्त नेटवर्क है मेरा यहाँ पे, मेरा 4G not an issue. Crystal clear audio. हाँ वो सो जिसको समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब ये है कि भाई आपका नेटवर्क पूरा है, बिकॉज माय नेटवर्क विल ऑलवेज बी गुड, बिकॉज आई एम यूजिंग एक्ट फाइबर नेट बहुत सारा स्पीड नेटवर्क है हैदराबाद के अंदर, सो माय नेटवर्क वोंट बी गेट डिस्टर्ब। सो नेक्स्ट आई विल गो टू दिस एड्रेस पार्ट। देखो यहाँ पे एड्रेस में मैं जाता हूँ, अब एड्रेसेस कुछ है क्या, नहीं है भाई एड्रेसेस, मैंने एड्रेस मेंटेन नहीं करा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो कुछ दूसरा चूज करता हूँ, इसका एड्रेस होगा ऑलरेडी, देखिए आई एम चूजिंग दिस, आई विल बी गोइंग टू द एड्रेसेस, यहाँ पे भी एड्रेस कुछ भी नहीं है, कैसे मेंटेन करना, एड्रेस मेंटेन करना बोले तो यहाँ पे देखो सिंपल। सो व्हाट ऑप्शन यू आर हैविंग हियर, सी एक है आपका डिस्प्ले और चेंज करके जो है यहाँ पे कुछ एड्रेस दे सकते हैं, नंबर 1 दे देके एड्रेस दे देना यहाँ पे, दैट वी विल बी सीइंग इन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। सो यहाँ पे सिर्फ क्या करना आप लोग, मैं आप क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, गो टू ईच एंड एवरी, हर ट्रांजेक्शन अंदर जाइए, देखिए क्या क्या है इसके अंदर। ये था स्टोरेज लोकेशन वाला, अब जो मैं जा रहा हूँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्लिक करके देख लेना क्या क्या है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितने की परचेज ऑर्गेनाइजेशन बन के है, देखो आपको नया बनाना है, क्या करना, न्यू एंट्रीज क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे बनाता हूँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन, क्या बनाना बोलो, टाटा वाले का बनाएंगे बोले, टाटा वाले का TA कैप्सूलेटर में देना है मुझे, TA12 बोल के दे रहा हूँ, या TA01 बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो ये विश क्या भी दे सकते हैं आप, TA01 दे रहा हूँ, नहीं तो खाली मैं T001 बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी भाई। ओके, तो मेरी याद आने के लिए, सो समझो कि
टाटा का हैदराबाद प्लांट यहाँ पे बनाना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टाटा का TH01 बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि हैदराबाद, यहाँ पे देता हूँ मैं, देखो हैदराबाद प्लांट, हैदराबाद परचेज ऑर्ग, ओके परचेज ऑर्ग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया मैं, ओके। और एक भी बनाना है नीचे, हैदराबाद में और एक भी है TH02 नहीं जैसे फिर ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे क्या है, हैदराबाद में और एक क्या बोलते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में और एक प्लांट है जो वरंगल में है या करीमनगर में है, वरंगल क्लिक करो यहाँ पे, वरंगल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन देख के समझ जाते हैं वरंगल में है। वरंगल छोड़ के और एक भी खम्मम में आ गया TH03। क्या भाई हम TH सीरीज फॉलो करना क्या, नहीं मेरी मर्जी भाई। यहाँ पे याद रखने के लिए TW01 भी लिख सकता हूँ मैं, या TW02 भी लिख सकता हूँ, TW03 भी। इट इज आप लोग जो है जितना मतलब क्लाइंट के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फ़िगर करना, उसको समझ में आना क्लाइंट को कि भाई TH01 बोल के सुनते परचेज ऑर्गेनाइजेशन ने बोल सकना कि अरे ये हैदराबाद का प्लांट है, TH02 बोल के तो अरे हैदराबाद का तो एलबी नगर का प्लांट है ये, मतलब उन्हें समझ जाना, उसको समझने के लिए आप अंडरस्टैंडिंग वे में कॉन्फ़िगर करके देना उसको, याद रखिए। सो मैं TW01 दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। अब ये खम्मम का बोल के बोल रहे हैं, थर्ड वाला खम्मम का बोल रहे हैं, बोले तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, TH की जगह TK देता हूँ मैं, TK01 असगर भाई एक डाउट है, यस। ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड रहते हैं ना, तो अपन कस्टमाइज कर सकते हैं एज आवर विश। अपन कस्टमाइज करके देना भाई, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं रहता इसके अंदर, किसका भी जो है। ओके आप इंडिया की SAP इंस्टॉल कर लिए तो वहाँ पे जो है जोमेटो का, स्विगी का, तुम्हारे शागोस का, ये सब के बने हुए नहीं रहता किसके भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का भी जो है आप कुछ कस्टमाइज करना पड़ता है। देयर वोंट बी एनी सर्टेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, खाली प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें दिया, मगर नॉर्मली जब आप एक कस्टमर जब SAP खरीदता, समझो कि टाटा ग्रुप वाले को SAP आप इंस्टॉल करना है, सो द टाटा ग्रुप पर्सन हैज टेकन SAP ले लिया उन्हें, मगर उसका SAP ओपन कर दो, उसको नहीं दिखते ये सब वैल्यूज, कुछ जब से वैल्यूज दिखाया मैं आप लोगों को ड्रॉप डाउन में, ऐसा वैल्यूज नहीं दिखते, उसको नहीं दिखते, कुछ भी नहीं, एम्प्टी रहता हो, आपको कन्फिगर करना पड़ता है हर चीज। उसको कितने परचेज ऑर्गेनाइजेशन होना, 3 ही होना बोल तो 3 बनाता हूँ, 10 होना बोल 10 बनाता हूँ, कितने होना तो बना लेते जाता हूँ। सो दिस आई इज मीन व्हाट यू आर देयर विल गोना, बी नो नेमिंग कन्वेंशन कुछ रहता क्या उसका? ये आपकी मर्जी, मैं बोला ना अभी, ने, अब जैसे दिया, अब मेरे को हैदराबाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन देना है, तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ सारा कैसा होना, TH01 देना, नहीं तो जो है खाली HY हैदराबाद 01 बोल के दियूँ क्या। हैदराबाद में और एक प्लांट है वो जो है आपका गच्चीबौली में है, सर मैं उसको HY02 दूँ क्या, उसको पूछ रहा हूँ मैं। खम्मम में एक प्लांट है सर, KM01 देता हूँ, आपको कुछ ऑब्जेक्शन है उस परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारे जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो 3 थे, वो तीनों को मैं 3 नाम दिया, यहाँ पे वरंगल का देना है मेरे को, तो वरंगल याद रखना, WR बोल के लिख सकता हूँ, या WG02 या WL02। सो उसको बोलते हैं हम, सर तुम लोग याद रखना पड़ता 3 परचेज ऑर्गेनाइजेशन को, एक था आपका हैदराबाद का जिसको हम HY01 बना लिए, वरंगल का जो है WN02, खम्मम को KM01। ये बना क्या करते हैं आप मालूम है, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, और एक डॉक्यूमेंट रहता है एक्सेल डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके लिख ले, आप सेव कर लेते कि आप 3 परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। वो डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, आप पूरा डॉक्यूमेंट ना सेव कर लेके क्लाइंट को शेयर करते हैं, देख रहे हैं यहाँ तेरा जो हैदराबाद का परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा जो है HY01 उसको देख लेता रेफरेंस हमेशा, उन्हें भूल गया था क्या, डॉक्यूमेंट खोले के देख लेता, अरे अच्छा HY01 बनाया क्या नहीं बोल के, याद रखिए। ओके, दिस इज वॉट यू आर गोना क्रिएट परचेज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अब बैक जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए देखिए बहुत सारे, ओके बहुत सारे बने हुए ऑलरेडी। ये क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस क्लाइंट में मिलते हैं आपको, ये हर एक क्लाइंट में नहीं रहते, आप लोग जो प्रैक्टिस क्लाइंट इंस्टॉल कर लिए ना, इसलिए सब दिख रहे हैं। देखो कैसे कैसे बना लिया उन्हें, C101 भी लिखा, CPF1 भी लिखा, HY01 भी यूज करा उन्हें, KM01, PO01, PO02, कई सभी बना सकते हैं, आपकी मर्जी भाई, आपको जैसा मनमानी है ऐसे कर सकते हैं। क्लाइंट को बोलना कि भाई देख ये हिसाब से मैं बना दिया, तो ओके। सो नो, ये हो गया आपका मटेरियल मैनेजमेंट। सो दैट इज व्हाट, ये बस ये चीज़ा करना है आपको जाके। सो आई गेस आवर टाइम इज कवर्ड ऑलरेडी, इट्स 10:09, this is it. So what you have to do is you have to go through these path, and you have to see what is in each of these paths. You have to click this material management and you have to see what are these. So ये click कर दिए हम, we have to come back and we have to go to this material management. You have to click this, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सब डिजाइन देखिए आप, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डॉक्यूमेंट क्लिक करना। This is what you have to browse every day. Okay, so this is my class for today. If anybody is having queries now, I can answer them for next. It's 10:09 now, 10:15. I can take it up to next 4-5 minutes. That's it. कोई सवाल आते हैं आप कर सकते हैं। We will stop the recording also. Recording.
Asghar bhai, what is the difference between this ECC